So, hello everyone, welcome to today's discussion of the Big O Club. So, without wasting any more time, let's start with the discussion and I'll hand it over to Raj. Okay, guys. So I hope you all have at least tried the problems once. I would share my screen now. Just one minute. So if you haven't gone through the problems of today, so I would just give you a quick summary of what the problems are about. So the first problem is missing and repeating numbers, which is the standard problem which can use hash map, or we can also use arithmetic formulas for it, which we will see today. And count inversions is a extension of merge sort problem. So it basically uses merge sort, but we have to apply some more changes into the main code to make it work. Okay, so first we will start with missing and repeating numbers. So first let's go through the problem statement once. Let's understand and let's observe कि हमें क्या क्या पता चल रहा है. So एक array दिया है size n का and elements. Uh, okay, so I will just share the links once here if you want to read yourself. So first problem statement says कि there is a array of size n. The elements of arrays are in the range from 1 to n. So let's say if the value of n is 5, so the range is 1 to 5. Ideally, the array should contain elements from 1 to n, but due to some miscalculations, there is a number r in the range which appears in the array twice, and the number m in the range 1 to n, which is missing from the array. Okay, so एक बार देखते हैं what is it, what is this trying to say. So एक array है, उसके अंदर 1 to n elements. So let's say the value of n is 5. Okay, तो अगर 1 to n है तो we would say कि array में क्या क्या elements हो जाएंगे, 1 2 3 4 and 5, right? And it says कि the number r is appearing twice and the number m is missing from the array. Okay, so let's say r is 2 and m is 5. So what would the desired array would be? क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 4. Now the order of these numbers can be varied. ऐसा नहीं होगा कि ये sorted ही होगा, ऐसा भी हो सकता है shuffled हो. So that doesn't matter to us. हमें बस बताना है कि ये r और m क्या क्या है. एक सैम्पल टेस्ट केस लेते हैं. ओके, तो और अच्छे से समझ आएगा. सो थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 6 तक का लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 है. तो लेट्स से 2 इज अपेयरिंग ट्वाइस एंड 4 इज मिसिंग फ्रॉम द नंबर. सो कैसे भी ले लो, लाइक 6 1 और 2 3 2 5. So I think you understand the problem statement now, right? अगर कोई डाउट हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यू कैन से नाउ. Otherwise I would go through the solution once, जो intended solution है. Okay, so the main intuition for these problems is like DSA में भी बहुत लोग हमेशा से बोलते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम मिलता है जस्ट अप्लाई हैश मैप, जस्ट अप्लाई हैश मैप या फिर डिक्शनरी यूज कर लो. तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कर सकते हैं, जस्ट अप्लाई हैश मैप. यू कैन जस्ट ट्रैक द वैल्यूज ऑफ वन, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to n, लाइक 1 2 3 ऐसे लेके हम n तक जाएंगे. Okay, and we will just count the frequency of every number. Let's say 1 का frequency इधर कितना है, 1. 2 का frequency यहाँ पे कितना है, 2. 3 का frequency कितना है, 1. फिर उसके बाद 4 का frequency यहाँ पे हो गया 0. 5 का frequency यहाँ पे हो गया 1 and 6 का frequency हो गया 1. Now after traversing this array and filling this frequency table, एक और बार तुम traverse कर सकते हो and check कर सकते हो अगर किसी का frequency 0 है, so that would be a number m, and the number which has the frequency of 2, that would be a number r. ये वाले solution में किसको doubt है कि just taking a hash of वाला solution? Anyone? क्या नहीं समझा? That you need to tell me first.
Dave. Which part didn't you understand? थ्री का फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है, थ्री का फ्रीक्वेंसी मैंने बोला कि वन है. सो एक बार अच्छे से लिख देते हैं. दिस इज आर आर एन, राइट? सो 1 2 3 4 5 6. नाउ वी हैव सेट कि n की वैल्यू 6 है. सो इस वाले आरे में नंबर्स 1 to 6 से लाई करेंगे, बिकॉज हमें इधर भी बोला है कि द एलिमेंट्स ऑफ द आरे आर इन द रेंज 1 to n, राइट? सो इधर वन कितनी बार आ रहा है? एक बार. टू कितनी बार आ रहा है? दो बार, तो हमने दो बार लिख दिया. थ्री कितनी बार आ रहा है? एक बार. फोर कितनी बार आ रहा है? एक भी बार नहीं आ रहा, तो हम जीरो लिखेंगे. फाइव कितनी बार आ रहा है? एक बार. और सिक्स कितनी बार आ रहा है? एक बार. सो दी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 is 2 एंड 4 का 0, तो 4 हमारा m बन जाएगा एंड 2 हमारा r बन जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? Cool. So, like, this is the very basic solution which you can implement. But what if you wanted to do something else? What if तुम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तुम्हें पूछ लिया एंड दे आर लाइक कि कुछ अलग बताओ, बिकॉज इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन वेरियस कंपनीज, राइट? यहाँ पे लिखा फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह सब में पूछा है. सो व्हाट इफ दे आर लाइक कि नहीं, हमें थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए. सो व्हाट यू कैन डू, लेट्स ऑब्जर्व इट मोर. हमें समझ आएगा थोड़ा. हमने जो 9th 10th 11th 12th में जो फॉर्मूलाज पढ़े, हम उसको रिवाइज करेंगे. लेट्स ये भी बंद कर देता हूँ. सिर्फ एक हमें पता है कि हमें कुछ भी एक एरे दिया होगा. लेट्स से द वैल्यू ऑफ n इज अगेन 5. एंड हमें कोई भी एक एरे दिया होगा जिसमें 5 वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5. ओके. एंड इसमें लेट्स से द नंबर विच इज रिपीटिंग इज a. ओके. एंड द नंबर विच इज मिसिंग इज b. ओके. एंड तुम्हें इतना बताया ना कि अगर सम ऑफ n नंबर्स होता है 1 + 2 + 3 + 4, अगर हम जाते जाए n तक, इसका फॉर्मूला किसको पता है? द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. आई वुड बी हैप्पी इफ कोई चैट में से कोई बोले. या अनम्यूट योर माइक. n into n plus 1 divided by 2. Very good. So the formula for the sum of first and natural number is n into n plus 1 divided by 2. Okay, थोड़ा सा ये वाला ठीक कर देता है. n into n plus 1 divided by 2, right? बट हमारे आर में क्या डिफरेंस है? हमारा जो a है वो दो बार आ रहा है और जो b है वो नहीं आ रहा है. ओके. सो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज, जो हमारा आरे का सम होगा ना, लाइक जो हमारा ये वाला आरे होगा, द गिवन आरे जो इनपुट में आएगा, लेट्स से दैट आरे इज समथिंग लाइक 1 2, दैट आरे इज समथिंग लाइक 1 2 3 3 5. ओके. सो यहाँ पे एज यू कैन क्लियरली सी द नंबर विच इज रिपीटिंग इज 3 and the number which is missing is 4, right? So if this is the sum of the first and natural numbers, which is basically 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, अगर हम इसमें प्लस 3 कर दे और -4 कर दे, तो क्या हमें इसका सम नहीं मिल जाएगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? जस्ट गिव मी थम्स अप. मिल जाएगा. हाँ, मिल जाएगा. विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा. तो अगर हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सी द सम ऑफ एरे, लेट्स से सम ऑफ एरे को हम बोलते हैं s_a. ठीक है. सम ऑफ एरे इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स प्लस a minus b, right? Because the a is the repeating number and b is the number which is not included in the array. Okay. तो अभी हमें एक इक्वेशन तो मिल गई दोनों वेरिएबल्स में, और अगर हमको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी तो हमें कितनी इक्वेशंस चाहिए? एक चाहिए या दो चाहिए?
दो चाहिए। 2 चाहिए। तो अभी हमें एक और इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, राइट? सो देखते हैं क्या हो सकता है। तो मैंने कैसे ही सोचा कि अगर मेरे को सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पता है, तो मेरे को ये भी पता ना कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है। लाइक लेट्स से the series which I'm talking about is 1 square plus 2 square plus 3 square, ओके। एंड मैं ऐसे आगे बढ़ते जाऊंगा n स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कोई बता, एनीवन फ्रॉम द चैट? n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6. Very good. So the formula is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, ओके। बट अब हमें ये तो क्या सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। बट हमारा जो आ रहा है उसमें वेरिएशन क्या है कि हमारा एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा था, राइट, ए, और हमारा बी नहीं आ रहा था। सो वी वुड आल्सो रिमूव बी, राइट? सो माइनस बी स्क्वायर। ये वाली चीज समझी कि नहीं समझी? ये मैं इधर लिख देता हूँ। दिस इज बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरे। तो एस अंडरस्कोर एस क्यू राजीव ऐसा अंडरस्कोर बंद किया। पर्सन म्यूटम ये समझा ये वाला पार्ट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों किया? समझा क्या? हाँ समझ। सो लेट्स से मैं इस पूरे वाले पार्ट को बोलता हूँ x, ओके। x इज नॉट लुकिंग x। लेट्स से वाले पार्ट को बोल दिया x, ये वाले पार्ट को बोल दिया y, ओके। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी, कोई बताओ इसको एक्सपांड करके। ये वाली आइडेंटिटी किसी को तो बोलना a पड़ेगा। plus b a minus b. Nice. So this is a plus b into a minus b, right? And हमें a minus b की वैल्यू पता है या नहीं पता है? पता है ना? पता है प्रीवियस। एंड a प्लस b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? a माइनस b को हम इधर लेके आ जाते हैं डिवाइड में, डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो हमें a प्लस b की वैल्यू मिल गई, यस राइट? तो अब हमें a प्लस b मिल गया, a माइनस b मिल गया, तो हम a और b भी निकाल ही सकते हैं। It would be, let's say this is x and this is y, तो x plus y divided by 2 is a, है ना? एंड ये अगर ये x है तो b would be equals to x minus a। समझा? तो इसमें कुछ नया नहीं था, ये सब चीजें तुम्हें पता है पहले से। तुम्हें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम पता है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला पता है। बस तुम्हें इधर कैसे ऑब्जर्व करना था उसे, वो देखना था। सो वो देख लिया। आप कोड देख लेते हैं, राइट? कोड क्या है? कोड में कुछ नहीं किया, जो मैंने अभी तक इतनी कथा सुनाई है ना वही सब लिखा है। पहले क्या कर दिया कि n, ये मैं लॉन्ग लॉन्ग का बताता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिया है। उसके पहले बेसिकली जो वेक्टर है उसका साइज ले लिया इधर। फिर उसके बाद जो मैंने बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम होता है n into n plus 1 by 2। उसके बाद स्क्वायर ऑफ सम इज n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। रियल सम एंड रियल स्क्वायर सम इज बेसिकली जो हमें वेक्टर इनपुट दिया है उसका सम ले रहे हैं। सो द सम ऑफ द ऑल द नंबर्स इन द वेक्टर एंड उनके जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम लिया, ऑलराइट। सो सम ऑफ 2 क्या हो जाएगा, रियल सम माइनस स्क्वायर सम डिवाइडेड बाय रियल सम माइनस सम। दिस इज बेसिकली क्या, बताओ? दिस इज बेसिकली a स्क्वायर माइनस b
स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी. ओके, सो जिससे हमको a प्लस बी मिलता है, एंड दिस इज व्हाट a माइनस बी. ओके, मतलब इसका वैल्यू a माइनस बी देगा, जैसे मैं तुम्हें बताया था कि सम ऑफ सम माइनस रियल सम हो गया ना, ये वैसे उस तरीके से. समझा कि नहीं? ये दोनों यहाँ से a प्लस बी मिल रहा है, यहाँ से डिफरेंस मिल रहा है, उसके बाद दिस इज बेसिकली दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इसका x माइनस a कर दिया बेसिकली. समझा कि नहीं समझा? समझ गए. अब लॉन्ग लॉन्ग का देखते हैं. डू यू ऑल नो द ओवरफ्लो का कंडीशन क्या होता है? लाइक एक मिनट, जस्ट एक बार चैट देख सकते हो क्या? yeah, so first of all I did come up with the hash map solution because वो सबसे ज़्यादा intuitive है कि अगर देखा, but like for this class थोड़ा बहुत explore करा तो समझ आया कि मैथ से भी होता है. ऊपर भी किसी को तो डाउट था अबाउट व्हाई वी आर रिमूविंग, सॉरी, व्हाई वी आर रिपीटिंग a एंड रिमूविंग b. हाँ, sure. So the question says that, right, कि एक नंबर को हमें one number appears twice in the array and one number is missing from the array. So we just said कि let's say अगर मैं वापस ले लेता हूँ पूरा. So हमें बोला है कि अगर एक नंबर वापस आ रहा है और एक नंबर मिसिंग है, तो लेट्स से माय array was this, right, 1 2 3, मेरा n की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5 होगा, और जो मेरा गिवन आ रहा है इट इज लाइक 1 2 3 3 5. ओके, तो अभी मेरा 4 यहाँ मिसिंग है और 3 वापस आ रहा है. तो इसमें से दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. अगर इसमें मैं +3 करूंगा और -4 करूंगा, तो -4 करा तो ये कट गया और ये 3 आ गया, तो ये इसका सम इसके बराबर नहीं हो गया. इसलिए दिस इज a, sorry, this is this a and this is b. वैसे you can take two variables कि like then you can say कि a is the one repeating and b है जो कि हम मिस हो रहा है में से. That's just वो नोटेशन के लिए वैसे करा था. समझा क्या? Or do you have any more doubts? मुझे चैट में बोल दो, मैं आई एम लुकिंग एट द चैट राइट. I would wait 10 to 20 seconds more. Doubt कोड में डाउट है तो कोड देख लो. So हाँ, I was talking about overflows. So किसी को पता है क्या कि इंटीजर का क्या ओवरफ्लो होता है? Like at what value int cannot hold anymore, like फिर वो we need to change the like data type change करना पड़ता है. नहीं तो बता देता है. 2 raised to 31 minus 1 is like bound की -2 2 raised to 31 and ये इधर से लेके इधर तक जाता है. सपोज x कैन लाई बिटवीन दीज टू, बट व्हाट द प्रॉब्लम इज हियर कि जो तुम्हारा डेटा है ना, ये n की वैल्यू वो 5 into 1e4 तक जा सकता है. ओके, सो 5 into 10 raised to power 4, इसका स्क्वायर क्या होगा बताओ? मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर तो बताओ. नहीं बताना, कोई बात नहीं. 25 into 10 raised to 8. 25 into 10 raised to 8. ठीक है, सो देयर इज अ चांस कि यहाँ पे ना अपना वैल्यू ओवरफ्लो कर सकता है. एंड यू विल कीप एडिंग दीज नंबर्स, राइट? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अपना वैल्यू ओवरफ्लो कर सकता है, इसलिए अपन यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग लेता है. दैट्स द ऑल, वही दिक्कत.
एंड उसके बाद कुछ नहीं, फिर यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया फॉर्मूला वाला पार्ट, दैट्स ऑल। अगर कुछ और डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज वी वुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोड C++ में लिखा है? या दिस इज C++। ओके। एनी मोर डाउट्स? अदरवाइज मस्त मत सॉर्ट करते हैं, देखते समझ आता है कि नहीं। ओके, सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको हटा देता हूँ। सो count inversion sir, problem का नाम। What the problem says, for a given integer array of size n containing all distinct values, find the total number of inversions that may exist. An inversion is defined for a pair of integers in the array list when the following conditions are met. अब ये conditions देखनी है कि अगर एक array i और array j is said to be an inversion when array i की value array j से ज़्यादा हो, then we would need to make a swap. Okay, so उसको inversion बोलेंगे। तो हमें यही नंबर ऑफ इन्वर्जन्स काउंट करना है, राइट? सो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पूरा उड़ा दे, पूरा ही उड़ा दे। तो अगर समझो ऐसा है 5 4 1 3 2, लेट्स से दिस इज एन array, तो array i is greater than array this, अगर ये लेट्स से ये दोनों एक इन्वर्जन काउंट करते हैं, लाइक दिस इज सेट टू बी एन इन्वर्जन व्हेन array i is greater than array j, एंड जो j का है दिस इज 0 1 2, राइट? इंडेक्सिंग अगर देखें तो j इज ग्रेटर देन i एंड इसकी वैल्यू से ज्यादा है। ये समझा इन्वर्जन क्या होता है? हाँ समझ। हाँ, सो इन्वर्जन क्या होता है ये समझा, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं कि ये इन्वर्जन वाली चीज़ कहाँ कहाँ आती है। ये इन्वर्जन वाली चीज़ हमें मिलती है बबल सॉर्ट में, देन मर्ज सॉर्ट में मिलती है, इसमें मिलती है इंसर्शन सॉर्ट में। तो लाइक अब हम इसका करें क्या, लाइक इधर हमें पता तो चल गया कि इन्वर्जन होता है। सो एक सॉर्टिंग के एल्गोरिथम किस किस को पता है मर्ज सॉर्ट? लेट्स सी फर्स्ट, हाउ मेनी ऑफ यू नो मर्ज सॉर्ट? कैन यू रेज योर हैंड? Which sort? मर्ज सॉर्ट, प्रायोरिटी मर्ज सॉर्ट। So how many people see? Eight. Oh, 2 people know. So मर्ज सॉर्ट क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है merge sort? किसी ने ऐसा है किसी ने जिसने यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में नहीं सुना? just raise your hand. Divide and conquer. ओके, चलो। तो डिवाइड एंड कॉन्कर से होते हुए जाते हैं मर्ज सॉर्ट पे एंड समझते हैं मर्ज सॉर्ट होता क्या है। तो लेट्स से यू हैव एन array वो जो कि अनसॉर्टेड है, राइट? एक अनसॉर्टेड array है, लेट्स से 5 4 3 2 1 रॉकेट लॉन्च। सो 5 4 3 2 1 हो गया। लेट्स से एक और ले लेते हैं कॉज इवन केस अच्छा रहेगा। सो मर्ज सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या है कि you keep dividing the array in two parts until it cannot be divided anymore, and उसके बाद हम comparisons कर करके उसको वापस merge करते हैं। So that's why it's called merge sort, कि हम पहले पूरा array को तोड़ देंगे, फिर हम छोटे छोटे segments को हम compare करेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और ऐसे करते करते हम पूरा array sort करेंगे। ठीक है, so अभी देखते हैं कैसे sort होगा। लेट्स से अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो ये हो गया 6 5 4 3 2 1। okay, so we will take here 6 5 4, इधर हो गया 3 2 1। मेरे को ये हटा देना चाहिए, ये हटेगा।
सो 6 5 4 3 2 1, फिर इसको वापस हटाते तो दिस इज लेफ्ट और राइट, राइट। सो 0 1 1, तो ये वाला पार्ट ले लेते थे 6 5 और ये 4, और ये हो जाएगा 3 2, ये हो गया 1। ठीक है, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, इसको नीचे ले लेता। ये हो गया 6 और ये हो गया 5। ठीक है, एंड इसको भी डिवाइड कर देते 3 2, एंड इसको नीचे ले लेते। सो हमने पूरा अरे डिवाइड कर दिया सेगमेंट्स में, लाइक दिस इज वन सेगमेंट, 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 दिस इज वन सेगमेंट। तो जैसे डिवाइड किया वैसे अब काउंटर करते हैं इसके ऊपर। तो 6 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो हम इसको 5 और 6 ऐसे रखेंगे, ऐसे इसको बोलते, इसका काउंटर हो गया 5 और 6 आ गया, और 4 का भी साथ में नीचे लेके आते हैं, देखते हैं अब इसका क्या है। लेट्स डू वन कॉल फर्स्ट। 3 और 2 में कौन बड़ा है? 2 छोटा है, तो 2 और 3 ऐसे हो जाएगा। एंड 1 को नीचे लेके आते हैं। नाउ 5 6 4 में से कौन छोटा है कौन बड़ा है? सो ये हो जाएगा 4, देन आएगा 5, देन आएगा 6, इधर कौन छोटा है? 1, देन आ जाएगा 2, देन आ जाएगा 3, राइट। अब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। सो 1 छोटा है 4 से, तो हम 1 को डालते हैं, फिर हम नेक्स्ट चेक करते हैं 2 छोटा है क्या 4 से, तो हम 2 को डालते हैं, फिर हम चेक करते हैं 3 छोटा है क्या 4 से, 3 को डालते हैं, फिर इसमें एलिमेंट्स बचे तो हम डालेंगे 4 5 6। सो हमने स्टार्ट किया 6 5 4 3 2 1 से, एंड वी एंड अप एट 1 2 3 4 5 6। तो डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ मर्ज सॉर्ट, कि हमने कैसे पूरे एरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते गए, एंड देन वी जस्ट चेक दी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स की इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। कोड की बात नहीं, अभी सिर्फ लॉजिक की बात कर रहे हैं, कोड तो हो जाएगा, बट ये लॉजिक समझा कि हमने कैसे तोड़ा, एंड देन वी जस्ट ट्राई टू कंपेयर टू एलिमेंट्स। हमने सिर्फ यहाँ पे 6 और 5 को कंपेयर किया, एंड देन वी जस्ट चेक कि 5 और 6 आएगा, फिर हमने 4 और 5 6 में कंपेयर किया, तो 4 छोटा तो 4 आया, एंड उसके बाद इसके दो एलिमेंट्स बचे, तो 4 और 5 6 हो गया। इधर 1 छोटा है 2 और 3 से, तो हम 1 इधर लेके आ गए, 2 और 3 इधर आ गया, एंड इधर 4 5 6 1 2 3 में हमने कंपेयर करते गए, तो 1 छोटा है 4 से, तो पहले 1 आया, फिर 2 छोटा है 4 से, तो 2 आया, 3 छोटा है 4 से, तो 3 आया, फिर 4 5 6 आ गया। तो ये बात समझी कि नहीं समझी? अभी बता दो, फिर कोड पे जाएंगे तो फिर पूरा बाउंसर जाएगा। समझ गया। इतना अच्छे से समझाया क्या? विश्वास नहीं था। चलो बढ़िया। सो अभी अगर लॉजिक समझ आ गया तो हम कोड पे जाते हैं, कि कोड लाइक लेट्स नॉट ये वाला भूल जाओ, ओके, ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं मर्ज सॉर्ट का कैसे कर रहे हैं। सो लाइक यू विल गेट एन एरे, ओके, और उसके साथ एक उसका साइज आ जाएगा, देन यू विल जस्ट एक बार लिख दो, लाइक डिफाइन अ फंक्शन मर्ज सॉर्ट का विच विल हैव 3 पैरामीटर्स एरे, फिर लेफ्ट राइट और काउंट। ओके, सो व्हाट इज दिस 0 n-1, ये लो हाई क्या है? ओके, सो क्या होता है? सो व्हेन वी स्टार्ट आवर मर्ज सॉर्ट, राइट, तो हम क्या करते हैं? तो लेट्स सी हमारा वो आ रहा था 6 5 4 3 2 1, तो हमने एक यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे रख दिया फ्लैग एंड लाइक पॉइंटर, एंड ये इसका साइज कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, राइट। सो 6 - 1 इज 5, तो ये 5 पे रख दिया। एंड देन अगर तुमने बाइनरी सर्च देखा होगा तो वहाँ पे भी तुम्हें ऐसे कुछ कंडीशन मिलता है कि while this pointer doesn't exceeds or is equal to this pointer we will keep dividing, right? So यहाँ पे उसने बोला कि mid is low plus high divided by 2, so 5 plus 0 is divided by 2 is कितना? 2, तो 0 1 2, तो इसके बाद का
एरे हम मर्ज कर देंगे, इसके बाद का एरे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, हमने वापस कॉल किया कि एरे लो मिड। सो अभी हमने जो वापस फंक्शन में पास की वैल्यू दोज आर 0 2, राइट। सो अभी जब इसमें वापस ये वाला फंक्शन आएगा तो पहले 0 आएगा फिर 2 आएगा, ओके। एंड इधर हमने नेक्स्ट वाला लिया मिड प्लस 1 और हाई, तो दिस इज 2 प्लस 1, सो दिस इज 3 एंड 5, तो एक दूसरा एरे हो गया, राइट। अब हम वापस रिकर्सिव कॉल चलेगा कि इधर 0 आएगा एंड देन इधर 2 आएगा, विच इज डिवाइड बाय 2 इज 1, सो मिड वुड बी 1। सो हम यहाँ पे आ गए, ओके। एंड फिर हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देंगे, सो वो चलता जाएगा जैसे मैंने बोला था। फिर उसके बाद 6 और 5 में डिवाइड होगा एंड देन इट वुड एंड। ये हो गया। उसके बाद क्या करें, राइट। सो उसके बाद वी हैव जस्ट रिटन कि एक मर्ज सॉर्ट होता है जिसमें एक लेफ्ट पॉइंटर, मिड पॉइंटर और हाई पॉइंटर। अभी ये क्या हुआ, दिस इज आवर मर्जिंग कंडीशन, राइट, कि जो मैंने लास्ट में बताया था कि 4 5 6, ओके, एंड 1 2 3। तो यहाँ पर लो 0 है, ओके, मिड इज 2 एंड हाई इज 0 1 2 3 4 5, ओके। सो दिस इज बेसिकली वो एक चेक रखता है कि अभी हमारा लो ये वाला हो गया, मिड हमारा ये हो गया, नाउ वी नीड टू मर्ज दीज टू एरेज जो 0 से 5 के बीच में आते हैं। सो इसके बाद हमने कुछ नहीं किया कि एक एक्स्ट्रा एरे हम रखेंगे, ओके। सो लाइक यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा एरे रखा, टेम्प एरे, एंड वी वुड जस्ट स्टोर द रिजल्ट व्हिच यू गेट फ्रॉम हियर, ओके। सो उसका पॉइंटर हमने 0 रखा है, दैट इज यहाँ पे मैंने बताया t इक्वल्स टू 0 जो है, एंड लो ये वाला हो गया, j इज द मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 इज 3। सो वो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम ये वाले वैल्यू को ये वाले वैल्यू से कंपेयर करते जाएंगे। दिस इज द अदर सेगमेंट एंड दिस इज अदर सेगमेंट, एंड बस हम इन दोनों को कंपेयर करते रहेंगे। सो वही किया है, इफ एरे j इज लेस देन एरे i, एरे j इज दिस वन, सो इफ दिस इज लेस देन दिस, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा ये टेम्प फैक्टर है ना उसके अंदर हम ये वाली वैल्यू स्टोर करेंगे, j वाली वैल्यू 1, ओके। अब और हम j प्लस प्लस कर देंगे, सो 1, इसको अब हम यहाँ से यहाँ पे पॉइंट करेंगे, राइट। नाउ वी विल कंपेयर अगेन, एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ i, सो एरे ऑफ j इज 2 इज लेस देन एरे ऑफ i जो कि 4 है, तो हम वहाँ पे 2 लिख देंगे और इसको हटा देते हैं, सही हो गया 3, राइट। अब हम एरे ऑफ j इज लेस देन एरे ऑफ i वापस चेक करेंगे, तो 3 इज लेस देन 4, सो यहाँ 3 आ गया। अब हम वापस अगर j प्लस प्लस करेंगे तो वो एरे के बाहर जाएगा, राइट, एंड वी हैव जस्ट केप्ट अ कंडीशन हियर कि j इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। तो फिर हम नीचे आ जाते हैं एंड वी विल जस्ट सी हियर कि व्हाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, सो मिड की वैल्यू 2 थी, तो जब तक ये मिड से कम है तब तक हम उसमें i ये वाला वैल्यू ऐड करते जाएंगे, सो दिस इज i, राइट। सो अगर आंसर t प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे i प्लस प्लस है तो हम पहले 4 डालेंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, i प्लस प्लस करेंगे, फिर हम 5 डालेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर हम 6 डालेंगे और फिर ये वाला एरे भी खत्म हो जाएगा, राइट, बिकॉज वी हैव रीच्ड द एंड। अब जो हमारे पास ये वाला एरे है ना एंड ये वाला मर्ज यहाँ पे हमको उसको रिप्लेस करना है उस एरे को, तो हम बस उन्हें यहाँ पे रिप्लेस कर दिया कि जो एरे ऑफ k है ना, एरे ऑफ लो, बस हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, सो दिस एलिमेंट वुड बी इक्वल्स टू दिस एलिमेंट, 5 वुड बी इक्वल्स टू 5 की जगह 2 आ जाएगा, वैसे क्या है लाइक 4 की जगह 2 1, 5 की जगह 2, वैसे जाते जाएंगे एंड ये पूरा एरे फिल हो जाएगा। सो दिस इज लाइक दी होल मर्ज सॉर्ट फंक्शन। बट मैंने इतनी कथा सुना दी तुम्हें, बट हमारा काम की चीज गई कहाँ? ये जो तुम देख रहे हो ना कि एरे j इज लेस देन एरे i, डोंट यू थिंक दिस इज सिमिलर टू दिस कंडीशन? ये सेम ही लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ऐसा भी लिख सकते हैं, एरे i इज ग्रेटर देन एरे j, राइट।
सही है या नहीं? सही है। सही है। अगर सही है तो हम यूज भी कर सकते हैं। तो array I is greater than array j अगर है तो now we just need to get a count कि नंबर ऑफ इन्वर्जन्स हुए कितने एग्जैक्टली, राइट? तो अभी ये मिड माइनस आई प्लस वन क्यों लिखा है इसने, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया ये भी बता दो। तो वी नो राइट कि यहाँ पे इन्वर्जन करना है, ये वाला मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। और हमें कैसे पता कि इन्वर्जन करना है? बिकॉज array I is greater than array j, 4 is greater than 1, right? बट मेरे को एक बार बताओ कि ये वाली array भी तो सॉर्टेड है 4 5 6, सो इफ array of j या फिर 1 is less than 4 then it should be less than 5 and 6 also, because this is an increasing array and this is also an increasing array. तो अगर 1 4 से छोटा है तो वो 5 और 6 से भी छोटा होगा, राइट? राइट हाँ। या नहीं? तो अगर Yes. वो 5 और 6 से भी छोटा होगा देन वी कैन जस्ट से ना कि ये वाली वैल्यू मिड है, ओके, एंड ये वाली वैल्यू आई है, आई, ओके। सो मिड माइनस आई प्लस वन इज द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स फॉर दिस वैल्यू, एंड जब हम इस पे आएंगे 2 के लिए देन आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई होगी, तो आई की वैल्यू वुड बी हियर, सो मिड माइनस आई प्लस वन, सो 2 के लिए हमारे पास 2 इन्वर्जन्स आ जाएंगे एंड 3 के लिए हमारे पास उसके रिगार्डिंग वैसे इन्वर्जन्स आ जाएंगे। आई थिंक नो, 3 के लिए भी हमारे पास 3 इन्वर्जन्स होंगे, बिकॉज आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जे की वैल्यू चेंज होगी, जस्ट एज आई सेड हियर कि जब array I is greater than array j तो j की वैल्यू चेंज होती है, i की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो i इधर ही रहेगा, i इधर ही रहेगा एंड j की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो j पहले इधर है, फिर जब 1 का हो जाएगा तो 2 पे जाएगा, फिर इधर 3 पे जाएगा। सो दैट्स बेसिकली हाउ यू काउंटेड इन्वर्जन्स हियर। तो अगर तुम हाँ, बस ये एक ही स्टेप आती है जहाँ पे इन्वर्जन्स होते हैं, तो मैं बस वहाँ पे वो इन्वर्जन्स का काउंट ले दूंगा फंक्शन में। ये इन्वर्जन्स काउंटिंग वाली चीज समझ आई? नहीं समझ आए तो मना कर दो, मैं वापस समझा दूँ। थोड़ा फिर से समझा सकते हैं? समझ आ गई तो एक और बात बता दो कि बबल सॉर्ट क्यों नहीं चलेगा। हाँ समझा सकते बिल्कुल, बट मेरे को पहले बताओ कि बबल सॉर्ट क्यों नहीं चलेगा। बबल सॉर्ट में भी तो इन्वर्जन्स होते हैं, बबल सॉर्ट में भी कंपैरिजन होता है। You all know, right? Bubble sort. एक बार देखते हैं क्या है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना ऑफ दिस क्रोम? Yes. ओके, सो मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? O of n स्क्वायर, एंड सॉरी बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? O of n स्क्वायर, एंड मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? O of n log n, and the constants which we have here is I think so constants which I have is 1e5, right? And n square में वो 1e10 हो जाएगा, which would exceed the 1e8 operations. So O of n square bubble sort तो चलेगा नहीं, इसलिए बबल सॉर्ट यूज किया। समझा? अगर वो समझा तो फिर मैं ये काउंट वाली चीज समझाता हूँ। हाँ, समझ गया समझ। ओके, सो कुछ नहीं, फिर लाइक एज अ सेट कि यहाँ पे अगर कंपैरिजंस ले लिया तो हमें काउंट करना है बस। तो यहाँ पे मैंने समझा था मिड माइनस आई प्लस वन क्यों होगा, देन यू वुड जस्ट पास दिस वैल्यू इन द रिटर्न काउंट
जो कि यहाँ पे आ जाएगा एंड वो काउंट्स चेक कर लेगा. आई थिंक समथिंग इज मिसिंग. हाँ ठीक है. सो यहाँ पे काउंट क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे जो हमने काउंट कर रहे थे हर बार वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा एंड देन वी वुड गेट द आंसर. कुछ तो मिस्टेक है. एंड ये वाला आई थिंक डिफरेंट टाइप सॉल्यूशन में जो लिखा था जिसमें मैंने काउंट बाहर दिया था. समझा काउंट वाला चीज? हाँ भैया समझ. सो दैट वर दी 2 प्रॉब्लम्स फॉर टुडे. अगर कुछ फिर भी नहीं समझा तो बताओ. कुछ एक एनी डाउट है. डाउट्स? या आस्क. हेलो ऑडिबल. क्विक सॉर्ट से रिलेटेड है ये? क्विक सॉर्ट इज डिफरेंट, मर्ज सॉर्ट इज डिफरेंट. सो क्विक सॉर्ट का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होता है बिकॉज इट एंड मर्ज सॉर्ट में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है बिकॉज वी आर टेकिंग अ टेम्परेरी एरे एवरी टाइम, राइट? इस वजह से. उसमें भी कोई लो Although- मिडिल हाई होता है लॉजिक? हाँ होता है, बट लाइक क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n स्क्वायर एंड मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n. Although sometimes people do prefer quick sort जब उनको space conserve करना रहता है, but इधर we have to use merge sort cause n log n ही चलेगा, n square we cannot afford n square. हाँ. And और plus क्विक we have सॉर्ट में मिडिल नहीं रहता, क्विक सॉर्ट में हाँ. पार्टीशन पॉइंट रहता है. तो and we have to check वो comparisons inversions check करना, तो वो merge sort से होगा. Any other doubts? 11:20 हो गया, we have like 5 minutes more. पूछ लो गाइस, यही टाइम है, अभी सीख लो डीएस अच्छे से. जो मर्ज सॉर्ट का आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया था, हाँ लाइक आई नो आपने वो सिंपलिसिटी के लिए ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जस्ट 6 5 4 3 2 1, या but can you explain it in a more complex order, like for example 6 4 3 ऐसे कुछ? हाँ तो श्योर, एक सेकंड. श्योर मेरे को एग्जांपल दो, मैं बताता मैं चैट में लिखता हूँ. हूँ. दो बोलो. दो ना एग्जांपल, मैं उस पे करता हूँ. 6 4 3 5 2. सो 6 4 3 5 2 1. सो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, चलो तुम ही बता दो. What do you मैंने think would डिवाइड be करना है, लाइक मीट फाइंड So- करके डिवाइड करें. पार्टीशन क्या पार्टीशंस करना है. सो 6 4 3 को पहले अलग लिया, फिर So 6 6 4 3 5, right? So 6 6 4 and 3 को and 5 2 and 1 2. right? Now इसको भी मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है? So 6 4 और 3 को मैं डिवाइड करूंगा एंड 5 2 और 1 को मैं डिवाइड करूंगा, राइट? सो ऐसे हो गया. 5 2 1 6 4 3, राइट? सो ये एक सेगमेंट, एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया, एक सेल बन गया, एक सेल बन गया, एक सेल, राइट? नाउ 6 और 4 को मैं वापस मर्ज करूंगा. नाउ आई विल चेक, जैसे मैंने बोला ना उधर, you keep 3 pointers. Yeah.
सो आई विल जस्ट कीप 3 पॉइंटर्स हियर कि मेरा ये हो गया इधर आई, और ये मिड एक्चुअली इधर सेम हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे जे हो गया, एंड देन यू कैन जस्ट चेक कि 6 और 4 में छोटा कौन है, 4. सो यू विल जस्ट मर्ज देम टू बी लाइक दिस. ठीक है, 4 और 6. ओके, एंड इसको मैं नीचे लेके आता हूँ 3 को, फिर 5 और 2 को मैं मर्ज करूंगा. सो हु इज स्मॉलर, सो 2 5 एंड 1 को मैं नीचे लेके आता हूँ. ओके, सो ये एक सेगमेंट बन गया, ये एक सेगमेंट बन गया, ये एक सेगमेंट बन गया, ये एक सेगमेंट. सो ये हो गया. अब इसको मैं मर्ज करूंगा. सो 3 स्मॉलर देन 4, राइट. सो मैं 3 को लिखूंगा, देन उसके बाद 3 में कोई एलिमेंट बचा नहीं तो मैं 4 6 के एलिमेंट्स को लिख देता हूँ. तो 4 6. इधर 1 इज स्मॉलर देन 2, सो 1 लिखूंगा, फिर उसमें कुछ एलिमेंट बचा नहीं, सो 2 एंड देन 5. नाउ द मेन, जहाँ पे the reason why we gave a complex example, right, समझने के लिए. So यहाँ 1 है, यहाँ 3 है. So 1 is smaller, तो मैं 1 लिखूंगा, right. Now मैं 1 का इंडेक्स बढ़ाऊंगा 2 पे, okay, and 2 is smaller than 3, so मैं 2 लिखूंगा, right, और मैं इसका इंडेक्स एक और बढ़ाऊंगा. Now we are at 5, okay, यहाँ के लिए 5 है and यहाँ के लिए अभी भी 3 है. Now we will compare 5 and 3, which is smaller, 3 smaller, right. So 3 लिखा and then हमने इसका पॉइंटर भी एक बढ़ा दिया, so it would be now 4. Now 4 and 5 का कंपैरिजन होगा, 4 is smaller और 5 smaller, 4 smaller. So मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा and ये मैं इरेज करके इसका पॉइंटर एक बढ़ा देता हूँ and 5 का 5 पे रहेगा. Now 5 and 6 को कंपेयर करेंगे, so 5 is smaller, so 5 का पॉइंटर में हटा के एक आगे बढ़ा देता हूँ, which ends this array, एंड मैं 5 को यहाँ लिख दूंगा. अब इसमें कोई बचा नहीं, इसमें एक एलिमेंट बचा, वो हम लिख देते हैं. सो दैट्स हाउ आई मर्ज्ड 6 4 3 5 2. समझा? समझा, थैंक्स. एनी मोर डाउट्स? Any more doubts, guys? Last step comparison करेंगे, please show. अच्छा मैंने वो बंद कर दिया. बंद कर दिया. It's just एक random ले लेते तो भी समझा. When we were at the last step, it was something like let's say 4 1 2 4. Okay, this is array of size 6, so ये हो जाएगा 3 5 6. This was somewhat like the last step. So अब हम दो पॉइंटर्स रखेंगे यहाँ पे 1 and 3. Now we just compare 1 and 3, which is smaller, while merging, right? While merging. So 1 and 3 में कौन सा छोटा है? 1. So 1 लिया, okay. Then इसका पॉइंटर एक आगे बढ़ाया, so you get 2 पे. And 2 and 3 में कौन छोटा है? 2. So हम 2 पे रखेंगे, 2 को नीचे लाएंगे, 2 का पॉइंटर एक आगे बढ़ाएंगे, राइट. सो 2 का पॉइंटर एक आगे बढ़ाया. नाउ 3 and 4 में कौन छोटा है? 3 छोटा है, सो हम 3 को रखेंगे एंड 3 का पॉइंटर हटा के एक आगे बढ़ाएंगे, सो ये आगे आ गया. एंड अब छोटा कौन है? 4 and 5 में 4 छोटा है, तो हमने 4 का पॉइंटर बढ़ा के एक आगे कर दिया, विच एंड्स दिस आरे, एंड हमने 4 यहाँ लिख दिया, तो ये आरे खत्म हो गया. नाउ इसके जो भी दो एलिमेंट्स बचे वो हम लिख देंगे 5 and 6, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड एंड दीज वर बिगर देन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो ये बन गया. Does that explains it, Sai Kiran? Okay. Does anyone have any more doubts? किसी को डाउट है तो पूछ लो, otherwise we'll wrap up the session. I will wait for like 1 minute more.
11:25 हो गया. If you have any doubt, chat में डाल दो या तो पूछ लो unmute करके. Anything related to session, anything related to DSA, anything related to practice. ये पूरा open field है. पूछ लो जी पूछ लो. Does anyone have extra expectation from us? You can tell. Okay, so should we consider the sort algo based on time complexity? Yes. So जैसा time complexity होगा वैसे ही choose करना, right? अगर constraints कम है then you can also go for a n square sorting algorithm. But यहाँ पे constraints were tight. It was 1e4. Sorry, it was 1e5, right? Yeah, 1e5 है. तो you need to have O of n or O of n log n time complexity of sorting, and O of n तो पता नहीं, let's say next 20 years में भी, बट अभी तो n log n है तो इससे काम चला. Like n log n is the best sorting algorithm, best sorting time complexity. Anything else? ये सेशन सॉरी मतलब कभी चालू हुआ ये सेशन? Like this particular session started at 10:30. No, because I was in the other meet and then इधर आया तो बहुत confused हो गया मैं इसके लिए पूछा. What year was this for? No, this is कोई like स्पेसिफिक ईयर का नहीं है, ये इन जनरल डीएसए का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है. बिकॉज करंटली जो सुमया का स्टेट है, डीएसए का स्टेट थोड़ा कम है, एंड डीएसए को वापस स्प्रेड करने के लिए हमने बिगो का इनिशिएटिव लाया. बिकॉज डीएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से. जो भी कंपनी आती है कोडिंग राउंड ही लेती है. सो डीएसए जितना जल्दी करोगे उतना बेटर, बिकॉज लॉजिक एंड मेनली प्रोग्रामिंग के ऊपर जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो जाता है. सो पर्टिकुलर ईयर टारगेट नहीं है, कोई भी आ सकता है. ये और करोगे क्या? हाँ हाँ, ये चलते ही रहेगा. हम तो करेंगे, हम तो रोज करते हैं, लोग आए तो बहुत बढ़िया. डिस्कशन तो डेली होता है. I was asking that do you have any expectation from us, any one of you, that we can implement? Anyone? We are following a planned schedule. It is like the problems are announced daily on Big Oka group. If you're big uh, group like, I don't know. I think everyone has the information about the group. अगर नहीं है तो I can send the announcements का link here. Yeah, please. Just सो हाँ, स्ट्राइवर बोल के एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं. उसे स्ट्राइवर का एचडी शीट बोलता है. लाइक अगर वो वाला पूरा क्वेश्चन सेट सॉल्व कर लिया तो डीएसए बहुत स्ट्रांग हो जाता है एक बंदे का. तो हम लोग वही सॉल्व कर रहे हैं, 1 by 1 करके हर दिन 2 2 क्वेश्चन डाल के वो पूरा शीट सॉल्व करने का प्लान है. तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ही जा रहे हैं. तो इन दी एंड तुम अच्छे लेवल पे रेडी हो जाओ. see, the plan is to cover the complete DSA syllabus in 95 days. So, like in the next week, we would cover arrays completely, and then next week हम linked list पे जाएंगे, and ऐसे धीरे करते करते सारे topics cover करेंगे. Do we need to do some prep work before this, or like would So something like help? as you go through the questions, right? Like आज merge sort का question था, तो तुमने अगर आज एक दिन में अगर merge sort सीखने में like अभी हमको 1 घंटा लगा, if you go through a YouTube video which is more concise, तो you can learn it in like 15 to 20 minutes, and उसके बाद थोड़ा बहुत thinking लगा, you can solve that problem. So like today you learned merge sort, tomorrow you will learn something other thing, परसों linked list सीखोगे, ऐसे धीरे धीरे you will learn along the way. So वही है कि like problem solve करते जाओ और कुछ नया लग रहा है तो वो सीखते जाओ. Because every problem has tags also, right? So अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं थे, बट टैग्स देखो कि ये प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी में आ रहा है.
So it's like So guys, किसी को और कुछ questions है? कुछ पूछना है कुछ भी अब इस कम्युनिटी टिल नाउ अभी सिर्फ arrays चल रहा है, सिर्फ arrays चल रहा है. It's like completely constructive thinking पे. If you don't have any more doubts, we will end the meeting. Alright, then. We'll leave. yeah so we'll see you guys tomorrow thank you for joining in बहुत मजा आया चलो भाई